کچے کے ڈاکو جو آپ کو پکے کے علاقے سے بھی اغوا کرنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ ڈاکو جو عمران خان کی حمایت میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتا تھا اور مقبول ہو رہا تھا، وہی ڈاکو جو سرعام اپنی ویڈیوز میں کہتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں، وہی ڈاکو جس نے ببانگے دوہل اقرار کیا کہ پولیس مجھے پکڑنے کی ہمت نہیں کر سکتی، کوئی مائی کا لال میرے علاقے میں مجھے گرفتار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کا اختتام اس کے اپنے ہی جگری یار کے ہاتھوں کیسے ہوا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جملہ ہے، میرے خدا کی قسم میں نے شاہد لنڈ کو مار دیا ہے، اب مجھے تحفظ دیا جائے۔ آپ لاہور کے آفیسر سے بات کریں، میں نے آپ پر پورا اعتماد کیا ہے، جہاں کہیں گے آپ کہیں گے میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ وہ پیغام تھا جو 8 نومبر جمعے کی رات پنجاب پولیس کے متعلقہ آفیسر کو موصول ہوا، جس میں شاہد لنڈ کے قتل کی منصوبہ بندی کا اختتام ہو چکا تھا۔ لنڈ جو کچے کے علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، شاہد لنڈ کی ہلاکت کی خبر پر ماتم کنا تھے، اور یہ پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے شاہد لنڈ کو مارنے کے لیے نہ تو براہ راست گولی چلائی، بلکہ اس قتل کے لیے انہوں نے ایک پیچیدہ چالاکی اور اعتماد کا استعمال کیا۔ پولیس نے اسی کے قریبی ساتھی کو اس کو مارنے کی ذمہ داری سونپی اور اس پر عمل ہو چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان رضوان عمر گوندل نے اس واقعے کو پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ شاہد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوششوں کی وجہ سے اس کے سر کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس بڑی رقم کا لالچ ہی وہ ہم وجہ بنا جس کے نتیجے میں شاہد کی ہلاکت ہوئی۔ یہ حکمت عملی پولیس کے لیے ایک کامیاب آپریشن ثابت ہوئی، جس میں لالچ اور چالاکی کا استعمال کیا گیا تاکہ اسے گرفتار یا ہلاک کیا جا سکے۔ شاہد لنڈ کا تعلق ضلع راجن پور کے کچے کے علاقے سے تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی فعال تھا، جہاں وہ پنجاب پولیس کو چیلنج کرتا تھا اور طاقتور سرداروں کو دھمکیاں دیتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کبھی کبھار پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی حمایت کے اندر بھی بیان دیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے عوام میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاہد لنڈ کا تعلق تحصیل روجھان کے کچا لنڈ سے تھا، اور وہ نوجوانی میں ہی جرائم کی دنیا میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی وہ والی ویڈیوز جس میں وہ بانی پی ٹی آئی کی حمایت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس کو وائرل کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک ریکارڈ یافتہ مجرم کسی کی پشت پناہی پر یا اپنے تئیں اگر کسی کی حمایت کا اعلان کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے، یا پھر اس کو حتمی طور پہ آپ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا؟ پولیس ریکارڈ کے مطابق اس کے خلاف دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، قتل، بھتہ اور چوری کے 35 سے زائد مقدمات درج تھے، اور صوبائی حکومت نے اس کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ شاہد لنڈ نے تقریباً 15 سال پہلے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا، جب اس نے 2 افراد کو مارنے کا ارادہ کیا، مارا اور پھر سندھ بھاگ گیا۔ سندھ میں اس نے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ روابط قائم کیے، اور بعد میں پنجاب کے کچے میں پہنچ کر قتل اور اغوا کی وارداتیں شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ قابل سکھانی اور وہاب سکھانی کے ساتھ مل کر جرائم کی دنیا میں بڑا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہد لنڈ کے لیے وہی حکمت عملی استعمال کی گئی جو 1 سال پہلے جانو اندھڑ کو مارنے کے لیے اپنائی گئی تھی۔ جانو اور اس کے 5 ساتھیوں کو گزشتہ سال جولائی کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ وہ واقعہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ شاہد لنڈ کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہد لنڈ اور اس کے قاتل کے درمیان رشتہ داری بھی تھی، اور مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ قاتل نے شاہد لنڈ کو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر بلایا، جہاں اس نے اکیلا دیکھ کر گولیاں ماری اور پھر موٹر سائیکل پر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ راجن پور کے ضلعی پولیس آفیسر یہ بتاتے ہیں کہ جب پولیس کو یہ علم ہوا کہ شاہد لنڈ اور قاتل کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اسی رشتہ داری کا فائدہ اٹھایا۔ پولیس نے قاتل کو اس کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے اور تحفظ کی ضمانت دی، جس کے بعد وہ اس قتل پر رضامند ہو گیا۔ قاتل نے پہلے جمعے کی صبح کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اور رات کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔
पुलिस ने उसके खानदान को इलाके से मुंतकिल कर दिया है ताकि उसके खानदान को कोई नुकसान न पहुंचे। कातिल ने यह इल्जाम लगाया था कि शाहिद लुंड ने उसकी भाभी को अगवा किया और 15 रोज गुजर जाने के बावजूद उस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके मुताबिक शाहिद के कत्ल के बाद एक रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक गुफ्तगू में कातिल ने यह दावा किया कि अगर वो चाहता तो ना सिर्फ शाहिद को बल्कि उसके साथियों को भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शाहिद लुंड की लाश उसके साथियों के पास थी और उसके खानदान वालों ने ना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई न पोस्टमार्टम कराया, जिसकी वजह से पुलिस के लिए लाश को तहवील में लेना मुश्किल था। दिलचस्प बात यह है कि राजनपुर पुलिस ने शाहिद लुंड की हलाकत को अपने साथियों के हाथों करार दिया, मगर साथ ही पुलिस मुकाबले में हलाकत का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। एफआईआर के मुताबिक एसएचओ नवीद आफ्ताब अपने साथियों के साथ शाहिद लुंड गैंग की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पहुंचे और जब वो दरियाए सिंध के करीब पकट नबी शाह पहुंचे तो लुंड गैंग के अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसका जवाब फौरी तौर पर पुलिस ने दिया और इस जवाब के मुकाबले में शाहिद लुंड अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इस मामले के ऊपर साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गालिब बंदेशा ने यह बताया है कि पुलिस अपने मुखबरों का इस्तेमाल अमूमी तौर पर करती है, जिन्हें आमतौर पर टाउट कहा जाता है। ये टाउट्स जो हैं वो डाकुओं के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। ये बाज़ औक़ात उन लोगों को डाकू बनाकर डाकुओं के ग्रुप में भी शामिल कर दिया जाता है ताकि खास टास्क को मुकम्मल किया जा सके। वो अफराद डाकुओं के दरमियान बैठकर पुलिस के लिए मुखबरी करते हैं और उनकी मालूमात की बुनियाद पर पुलिस डाकुओं की कमजोरियों और इख्तलाफात का पता चलाती है। शाहिद लुंड के मामले में भी ऐसी ही हिकमत अमली अपनाई गई और जब कातिल और शाहिद के दरमियान इख्तलाफात का इल्म हुआ तो उस मालूमात को टेक्नोलॉजी की मदद से भी की तस्दीक की गई। उसके बाद कातिल से राबिता किया गया और उसी के जरिए शाहिद की हलाकत का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया गया। पुलिस ने गुज़श्ता बरस जानू अंधड़ के कत्ल के बाद उसके साथी और पुलिस के मुखबर उस्मान चांडिया को इलाके से बाहिफाजत निकालने में नाकामी का सामना किया था। पुलिस बताती है जब वो सिंध के कच्चे के इलाके से बाहर निकलने वाले थे तो रास्ता भटक जाने पर वो शर बरादरी के डाकुओं के घेरे में आ गए, जिन्होंने उस्मान चांडिया को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर मार दिया था। और इस मर्तबा राजनपुर पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने शाहिद लुंड के कातिल को उसके इलाके से बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही कातिल ने शाहिद लुंड को मारा, फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने भारी नफरी के साथ कच्चे के इलाके में पहुंचकर कातिल को किसी किस्म के नुकसान के बगैर निकाल लिया। वो एक फुटेज मंजर आम के ऊपर आती है कि जिस पे वो आता है, सामने पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, उनकी लाइट्स चल रही हैं। वो आता है और आके कहता है मैं यहां पर पहुंच गया और मुझे यहां से निकाला जाए। फिर वो नीचे बैठता है और कहता है कि ये जो राइफल है, ये मेरी राइफल एक बार फंस गई थी और ये इससे गोली नहीं निकली थी, और जब ये मौका आया था तो उस वक्त मैं परेशान हो गया था, लेकिन फिर मैंने इसको चलाया तो वो चल गई। फिर वो खाने को कुछ मांगता है, वहां पे मुकामी पुलिस ऑफिसर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसको कुछ खाने को दो। वो अपने ही बैग से एक सेब निकालता है, उसे खाने लग जाता है, उसे पीने को पानी फराहम किया जाता है। जब शाहिद लुंड के सर की कीमत 1 करोड़ रखी गई थी तो वो बहुत परेशान हुआ था और हथियार डालने पर भी गौर कर रहा था। पुलिस ने उसे पैसे के लालच में लाकर कत्ल करवा दिया ताकि इस नासूर का खात्मा हो सके। ये कहा जाता है कि वो जो है उसको पकड़ने की हिकमत अमली जो है वो उसी के रिश्तेदार के हाथों बनाई गई और इस हिकमत अमली के नतीजे में शाहिद लुंड मारा गया। पैसों के ही बस डाकू अपने साथियों को भी कत्ल कर सकते हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया। जानू अंधड़ का जो वाकया पेश आया था, जिसके बाद ये काफी कॉन्शियस हुए और इस बार उस मुखबर को वहां से निकालने के लिए भारी नफरी तायुनात करना पड़ी। तो लास्ट टाइम पिछले साल उस्मान चांडिया वो शख्स था जो खुद एक डाकू था, जो डकैती, अगवा बराए तावान और इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। लेकिन पिछले साल से चंद माह कबल जब वो मरा, उससे चंद माह कबल उसने पुलिस से खुद राब्ता किया और कहा कि वो ये काम छोड़ना चाहता है और खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, मगर उसके बदले उसकी जान बख्श दी जाए। उस्मान चांडिया को यह भी खौफ था कि पुलिस किसी ऑपरेशन में उसको मार सकती है
और उस केस से मुंसलिक पुलिस ऑफिसर ने यह बताया कि उस्मान चांडिया ही को जानू अंधड़ और उनके साथियों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। और मतलूब जानू अंधड़ जो था वो सबसे बड़ा पुलिस का हदफ था। और यह मुश्किल था कि उस्मान चांडिया सिर्फ पिस्तौल चलाने की तरबियत रखता था। उसने पुलिस को यह बताया कि पिस्तौल की मदद से उसके लिए जानू को हलाक करके वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको वहां पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। उस्मान चांडिया ने पुलिस का मुखबिर बनने और जानू को हलाक करने की हामी भरी, जिसके बाद उसने जानू और उसके दीगर चंद साथियों का एतमाद जीतने के लिए पुलिस ने तमाम तर उसको अपनी मुआवनत फराहम की। उस्मान चांडिया को रहीम यार खान पुलिस ने बाकायदा तौर पर बड़ी गन चलाने की भी तरबियत दी। उसको तरबियत देने की तस्वीर भी पुलिस के पास मौजूद है। उसको बड़ी गन के इस्तेमाल पे उबूर हासिल करने में काफी वक्त लगा। उस्मान चांडिया जो है वो जानू अंधड़ और उसके बाकी साथियों का एतमाद जीतने में इस हद तक कामयाब हो गया कि उसने पिछले साल उस वाकये से पहले ही 3 ग्रेनेड उन्हें दिए और मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का भी कहा, जिसमें एक पुलिस चौकी थी, पुलिस की मोबाइल थी। लेकिन उस्मान चांडिया ने साथ ही साथ रहीम यार खान पुलिस को भी इस हवाले से आगाह किया। उसके बाद जानू और दीगर डाकुओं को मारने के मंसूबे पर जल्द अमल करने का फैसला किया गया, जिसके तहत पिछले साल को उस्मान चांडिया ने जानू अंधड़ और उसके दीगर साथियों को दावत पर एक डेरे पर बुलाया। रात के लगभग 12 बजे का वक्त था। उसने उन्हीं की कलाशिनकोफ उठा के सोए हुए डाकुओं पे फायरिंग की। पुलिस को भेजे गए पैगाम के अंदर यह बताया कि 4 डाकू मौके पे हलाक हो गए, जिनके अंदर जानू भी मौजूद था, जबकि 4 जो हैं वो जख्मी हुए। फिर उसके बाद उस्मान चांडिया ने डाकुओं की बंदूक और 15 गोलियों के मैगजीन उठाए और वहां से फरार हो गया। पुलिस उसके साथ मुसलसल राब्ते में थी और सैटेलाइट लोकेशन की मदद से उस इलाके से बाहर निकलने में उसे मदद फराहम कर रही थी। लेकिन तकरीबन 700 मीटर दूर का वो वक्त था जब वो डर गया। ये इसरार करने लगा कि पुलिस वहां से आकर उसको ले जाए। पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि वो उस इलाके में नहीं जा सकती थी। इसी दौरान शर बरादरी के डाकुओं को अपने साथियों के हलाक होने की खबर मिली। उन्होंने उस्मान चांडिया को उसी मकाम पे घेरा और वहीं पे उसे मार दिया। और अब की बार रहीम यार खान पुलिस को यह था कि अगर इसी तरीके से दीगर डाकुओं को भी पाया तकमील तक पहुंचाना है तो फिर इस शख्स को बाहिफाजत वहां से निकालना होगा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और बाहिफाजत उसे वहां से निकाला। यूं बहुत सारे लोग अब यह राय रखते हैं कि इससे कच्चे के डाकुओं का जो खौफ है वो खत्म नहीं होने वाला। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जिसका खातिमा जरूरी है। वो जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते थे, अब वो कौमी धारे में क्यों नहीं आ रहे? और उनका कला कमा करने के लिए हमने हर तदबीर को आजमा लिया, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ घेरा तंग होते होते कमजोर क्यों पड़ जाता है? ये वो बुनियादी सवालात हैं जो पिछले कई सालों से गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा बबांगे दोहल डाकू था, ऐसा बेखौफ था कि ये टिकटॉक के ऊपर नमूदार हुआ। इसने यूट्यूब का अपना चैनल बनाया और लोगों को उसे सब्सक्राइब करने की दावत देने लगा। टिकटॉक के ऊपर अगर कोई टिकटॉकर अपनी कोई वीडियो लगाकर किसी की तरफ से धमकाए जाने की बात करता तो ये उसके साथ डुएट करके उसे पैगाम देता कि तुम खौफजदा ना हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। इसका डर इस हद तक फैला हुआ था कि वहां के इलाके के लोग भी इसका नाम सुन के डर जाते थे। लेकिन अब जब उसका अंजाम हो चुका है तो वो कई सवालात को भी जन्म दे चुका है कि क्या आने वाले दिनों में तमाम ऑपरेशन इसी तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाए जाएंगे या उसके लिए कोई और तदबीर इस्तेमाल करना पड़ेगा।